Okay. Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. So let me start today's current affair with a short story. So there was a student named Aaron, and every evening he would sit alone with his books, tired, confused, and sometimes frustrated. So he saw his friends posting their achievements online, and he felt like he was failing behind. And sometimes he cried, feeling lonely and overwhelmed. Thinking this that am I like good enough? Am I doing enough? Am I like all these achievements? Is this really so hard to achieve? So one day, his teacher told him a very simple truth, but very, very informative and very efficient. So what did she say? She said that it's not about how fast you go, but it's not about stopping, right? And this teacher name was Confucius, and what he says. So with this, Arab realized that everyone struggles in silence. Everyone like faces lots of things, and they feel sometimes lost, right? So what mattered in this journey is continuation, continuing your things, right? Even when no one is noticing, even when it feels impossible. So he didn't compare himself to others anymore. So he just focused on his own growth. And this is exactly what you have to do, right? This is exactly how you have to continue your journey, because UPSC or any government examination is not that easy to clear. Studying is another thing, but other than that, balancing all these emotions, balancing outer world, balancing all the criticism, right? This is also part of this journey, and that's exactly your job, that's exactly your test, right? And that's what you have to manage. So do not forget the quotation of Confucius. So what did he say? He says it's not about how fast you go, but it's about not stopping. And that's what exactly you have to work. Do not stop. Doesn't matter how fast the journey is, doesn't matter how the slow journey is, doesn't matter what people are saying to you, doesn't matter how much they are criticizing you. You have to continue your journey, right? This is the part of the journey. Okay. So this is the lesson for you today. And current affairs, like life, these all these things can feel overwhelming. We all know that how tough it is, and the criticism that we face, right? Sometimes the news is also confusing, sometimes it seems too much, but if you show up every day, if you show up every day in my classroom, then think critically, keep learning, you're already ahead, right? So there is one task for you with this. Write one small thing you did yesterday and that moved you forward, no matter how small it is, right? It could be revising a topic, it could be reading an article, it could be discussing news with someone, practicing writing answers. So claim it, celebrate it. Even small steps matter in building your future now. So now with Arav's mindset, patient, focused, and persistent, let's begin today's current affairs classes. So let's move to our first news and let's see what our first news is in. Good morning, Vikas. Now, what's our first current affairs is telling to us that Kakinada will be clean hydrogen valley of India, says Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu. Okay, very important news, and we'll try to understand with map. We'll try to understand with words also that what UPSC can ask, right? What UPSC asked, right? And how we can put this in map also, and how you have to frame the answers. So all these things will be discussed. Make sure that you are sitting with pen and paper, and make sure that you are writing each and every pointer. Okay, चलो अब वापस से I'll tell you a story, right? Then we'll move to the current affair. Then we'll try to analyze that what UPSC can ask, right? Step by step, small things we'll try to understand. ठीक है? अब imagine करो कि आप लोग खड़े हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? आपको आवाज आ रही है waves की. You can like see ships at the port. You can smell salty water. So this place is Kakinada, ठीक है? A quite coastal city in Andhra Pradesh, ठीक है? तो until now what was happening? Kakinada was mainly known for किसके लिए? अपने port के लिए जाना जाता था, fertilizer industries के लिए जाना जाता था, ठीक है? Normal coastal line town माना जाता था. लेकिन एक दिन one day the chief minister of Andhra Pradesh, ठीक है, and Chandrababu Naidu, he came and he made a big announcement. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि Kakinada will become the green hydrogen valley of India. ठीक है, अब आप ये सवाल पूछेंगे कि मैम व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, राइट? और काकीनाडा हुई क्यों? ठीक है, अब ये यूपीएससी के लिए क्यों मैटर करता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्लोली, ठीक है, लाइक अ स्टोरी, नॉट लाइक अ न्यूज़पेपर ऑलरेडी हमारे पास है, कहानी की तरह समझेंगे. ऑल्सो हर आर्टिकल में, हर एडिटोरियल में, हर न्यूज में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास नहीं होती हैं, ठीक है? सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन एंड यू हैव टू लर्न. तो उसी चीज पर सिर्फ फोकस करेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले तो प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद समझेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू ऑलरेडी नो कि इंडिया यूजेस कोल, पेट्रोल यूज करता है एनर्जी के लिए, ठीक है? अब ये जो फ्यूल है वो क्या कॉज करता है? पोल्यूशन कॉज करता है, क्लाइमेट चेंज कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना? तो so the world is asking that how do we grow without destroying the planet,
है ना. So this is where green hydrogen enters the story, right? Now let's understand that what is this green hydrogen. अब green hydrogen is a clean fuel जो कि बनाया जाता है water से using what? Using solar energy और हमारा wind energy. ना इसमें कोई स्मोक है, ना इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ही कोई पोल्यूशन है, ठीक है. इसीलिए इसमें वर्ड क्या है? ग्रीन, है ना. जैसे हमारे पास कंट्रीज है, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर, राइट. ऑल दीज कंट्रीज दे आर ऑलरेडी यूजिंग, दे वांट दिस फ्यूल, राइट, बट दे डोंट हैव इनफ स्पेस. ना उनके पास सनलाइट है ये प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. इसीलिए इंडिया के पास है, ठीक है. दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर देम, ठीक है. नाउ अब काकीनाडा क्यों? ये काकीनाडा यही यूज क्यों किया? अब थिंक लाइक अ यूपीएससी स्टूडेंट, ठीक है. व्हाई डिड द गवर्नमेंट चूज काकीनाडा? क्योंकि ये पहले तो नियर द सी है, ठीक है. यहाँ पे इजी वाटर एक्सेस हो सकता है. दूसरा इनके पास पोर्ट है, इजी पोर्ट होगा आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग सनलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, है ना. तो लैंड इज अवेलेबल फॉर बिग इंडस्ट्रीज. सो काकीनाडा बिकेम व्हाट? बिकम्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर क्लीन एनर्जी हब, है ना. तो इसीलिए काकीनाडा को चूज किया गया है, राइट. अब अभी समझेंगे कि एग्जैक्टली वहां पे बिल्ड क्या हो रहा है. तो मैम वहां पर बिल्ड हो रहा है हमारे पास अ ह्यूज ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट, राइट. दिस इज बीइंग बिल्ड. सो द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अराउंड व्हाट? इट इज अराउंड 13,000 से लेके 18,000 करोड़ तक, ठीक है. सो दिस बेसिकली प्लांट विल स्प्रेड अराउंड लाइक 500 एकर्स तक ये स्प्रेड होने वाला है, ठीक है. अब ये प्रोड्यूस क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, राइट. एंड दीज आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर और शिपिंग में, ठीक है. सो दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है. आपकी कोर्स से समझ में आ गया होगा ये छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लीन फ्यूल प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है. अब व्हाई इज वर्ल्ड वाचिंग दिस प्रोजेक्ट? संसार से इसका लेना देना क्या है? बाकी कंट्रीज व्हाई दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस? क्योंकि इंडिया विल एक्सपोर्ट ग्रीन फ्यूल टू अदर कंट्रीज, ठीक है. तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है हमें, ठीक है. इंडिया का जो बेसिकली कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होगा. इंडिया विल क्रिएट व्हाट? 1000 ऑफ जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी. तो एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है हमारी एनवायरमेंट के साथ भी कनेक्ट होता है, इकोनॉमी के साथ भी कनेक्ट होता है, एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी. इसीलिए यूपीएससी लव्स सच टॉपिक्स, स्पेशली ये वाला. तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एंड मेकिंग ऑल दीज कीवर्ड्स दैट आई एम टॉकिंग. अच्छा, अब इसके साथ साथ में वर्ड्स के साथ साथ में मैप के साथ समझने के साथ साथ में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज. ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों? आई कैन स्टिल नॉट सी एनी मैसेज फ्रॉम यू पीपल कि व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड. सुनने थोड़ी ना आते हो सर. अच्छा, पहले तो समझते हैं कि why we are reading this news. So ma'am and sir, we are reading this news because this paper basically talks about GS पेपर 3 रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात होती है, ठीक है. जीएस पेपर 2 में क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्लोबल एनर्जी कोऑपरेशन, इंडियाज क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे. दैट हाउ बेसिकली दिस इज अफेक्टिंग अस, हाउ वी कैन रिड्यूस इट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बैलेंस आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एज वेल, राइट. सो ऑल दीस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड विद दिस, ठीक है. अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया है, सिर्फ न्यूज पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है. सिर्फ न्यूज पढ़ने से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू लिंक इट, यू हैव टू राइट इन एग्जांपल्स, राइट. नॉलेज के साथ साथ में यू शुड नो दैट हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, वरना कोई फायदा नहीं है इतनी न्यूज पढ़ने का, है ना. तो देयर इज अ वर्ड व्हिच इज बेसिकली रिस्क सोसाइटी व्हिच गोज विद द सिचुएशन. गुड मॉर्निंग. So the word is what? The word is risk society, ठीक है. So this is given to us by Ulrich Beck. ठीक है. अब रिस्क सोसाइटी हमें दिया है अल्रिक बैक ने. वो क्या बोलते हैं कि रिस्क सोसाइटी एक स्टेज है, ठीक है, ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, जहां पर हमारे पास बड़े बड़े थ्रेट्स हैं जो दोज आर लाइक मैन मेड, ठीक है, नेचुरल नहीं है बल्कि दीज आर मैन मेड, राइट. सो जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी इनसिक्योरिटी हो गई, राइट. सो दीज आर क्रिएटेड बाय डेवलपमेंट इटसेल्फ. सो गवर्नमेंट बेसिकली दे मस्ट प्रिवेंट दीज फ्यूचर रिस्क, राइट. सिर्फ उन्हें मैनेज करने से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू बेसिकली मैनेज दी फ्यूचर प्रिवेंशन आल्सो. यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल, राइट. So ये जो फोकस है हमारा शिफ्ट किस चीज से होता है? इस चीज से that how much can we produce से what risk are we creating for the future, right? So the word is we have risk society. ठीक है, किसने दिया? ये हमें दिया है अल्रिक बैक ने, ठीक है. So we are discussing about hydrogen. Okay. ये इंडिया का मैप है, ठीक है, सबको पता है. टॉप में नॉर्थ है, बॉटम में साउथ है, वेस्ट, ठीक है, राइट में हो गया, सॉरी लेफ्ट में हमारा वेस्ट हो गया, राइट में हमारे पास ईस्ट हो गया, ठीक है. सो एनी वाटर बॉडी ऑन द राइट साइड ऑफ इंडिया इज व्हाट? ईस्टर्न साइड, ठीक है. तो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द बे ऑफ बंगाल है, ठीक है. तो दिस ब्लू बिग एरिया, this is Bay of Bengal, right? And what we have here, this is Arabian Sea, right? Now right side water of India is Bay of Bengal, left side में water of India is Arabian Sea, ठीक है. Whenever you forget, just remember this one thing, that Bay of Bengal is on India's right side, right? अब
दिस इज वेयर लैंड बेसिकली टचेज द सी, वी कॉल इट व्हाट, कोस्ट लाइन, ठीक है। तो जब कोस्ट लाइन की बात करते हैं, दिस इज द कोस्ट लाइन वी हैव, ठीक है। अब गुजरात की सबसे लेंथीएस्ट कोस्ट लाइन है, राइट, लेंथीएस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, लेकिन ये बन कहाँ पे रहा है, बेसिकली ये हमारे पास बन रहा है आंध्र प्रदेश में, राइट। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैम आंध्र प्रदेश में ही क्यों बन रहा है, राइट, विल बेसिकली एनालाइज ऑल दीज थिंग्स। अब जब ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं, दिस टचेज द बे ऑफ बंगाल, राइट, वेस्ट कोस्ट टचेज द अरेबियन सी, राइट, सो स्टेट्स टचिंग द बे ऑफ बंगाल हैव एन ईस्ट कोस्ट लाइन, राइट। सो नाउ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये चीज बन रही है, व्हाई नॉट इन बेसिकली गुजरात, अगर उसकी सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कोस्ट लाइन है, देन व्हाई नॉट हियर एंड ओनली इन आंध्र प्रदेश, यू जस्ट केम, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिव्यम, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास लेंथीएस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ गुजरात, देन व्हाई इट इज लाइक मेड देयर, हाइड्रोजन का ये क्यों वहां ये प्लांट क्यों बन रहा है, नॉट ऑन गुजरात एंड व्हाई ओनली ऑन आंध्र प्रदेश, व्हाट इज द फैक्टर है, यस। So as you can see कि जो आंध्र प्रदेश है, that how you can see the long basically touches the sea. So this is why we see आंध्र प्रदेश has a long coastline, ठीक है, लेंथीएस्ट हमारे पास गुजरात है, राइट। तो जितना ज्यादा बेसिकली द मोर इट सी इट टचेस, राइट, ज्यादा हमारे पास पोर्ट्स होंगे, ज्यादा पोर्ट्स होंगे तो मतलब ज्यादा ट्रेड होगा, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड काकीनाडा का क्यों है, राइट, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर चूजिंग दिस प्लेस ओनली एंड नॉट ओनली गुजरात, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज काकीनाडा, राइट। नाउ when we talk about this small dot is Kakinada, so it is touching the Bay of Bengal, it has Kakinada ports, ठीक है। तो Kakinada is basically a coastal city, not inside land, right। तो basically Kakinada is basically near the Bay of Bengal, ठीक है, water होगा वहाँ पे, तो has a port मतलब export होगा, right। In a state basically where we have like sun, we have wind, so government chose because of its green hydrogen, right। So this is why Andhra Pradesh, right, CM basically announced कि the Kakinada will be the green hydrogen valley of India, right। So Kakinada lies on the east coastal of India, जो कि टच करा है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में बेसिकली which has a long coastline and basically it is basically known for its port access as well. So this is why it is making it ideal for green hydrogen production, ठीक है। सिर्फ एक यही रीजन नहीं होता, there are multiple reasons also, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम गुजरात क्यों नहीं, आंध्र प्रदेश क्यों, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन बेसिकली दीज थिंग्स ओनली, कि सी एक्सेस है या नहीं, लेंथ क्या है कोस्ट लाइन की, ठीक है। वो बेसिकली डिपेंड इस चीज पे भी करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी उसकी कितनी ज्यादा है, पोर्ट इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन है या नहीं, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन कितना है, उसके बाद लैंड अवेलेबिलिटी कितनी है, राइट, नियर पोर्ट्स, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ज्योग्राफी क्या है, राइट। सो ऑल दीज क्राइटेरियाज आर बेसिकली फिटिंग विद दिस काकीनाडा, राइट। सो दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, तो अब काकीनाडा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है, दिस वैली इज बेसिकली अ लार्ज स्केल ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो बनाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, ये जो फ्यूल्स है ये रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए जाएंगे, जैसे कि सोलार और विंड से, राइट। तो ये इस प्रोजेक्ट का एम क्या रहेगा, प्रोड्यूस करना हमारा बेसिकली और ज्यादा टू मेक इंडिया इन अ मेजर प्रोड्यूसर, और बेसिकली एक्सपोर्ट में भी और ज्यादा एफिशिएंट होना, ठीक है। अब बात करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है वो स्प्रेड हो रहा है 500 एकड़ में, कितने एकड़ में, 500 acres, right? So this is basically spreading in 500 acres, right, near Kakinada ports, right, जो कि हमें easy access देगा for global exports also, ठीक है, international relations की भी यहाँ पर बात होगी, right। तो अब ये डेवलप वाई हो रहा है बाय EM Greens, right, it is part of the it is part of the Greenco groups, तो पार्टनरशिप विद द ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जैसे कि हमारे पास मलेशिया हो गई, सिंगापुर हो गई, यूएई हो गई, राइट, ऑल ऑफ दीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो दिस फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने बेसिकली इस चीज के लिए अनाउंसमेंट करी। अब जैसे कि मैंने आपको साइज इन्वेस्टमेंट भी इस चीज के बारे में बता दिया है। टाइमलाइन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो दिस प्रोडक्शन sorry, this production is expected to begin by the end of 2027, ठीक है, जिसका इनिशियल आउटपुट जो होगा, राइट, विल बी ऑफ ग्रीन अमोनिया, राइट। सो दिस प्लांट विल बी एक्सपेंडेड इन स्टेजेस, ठीक है, वाइडनिंग कैपेसिटी जो होगी वो और ज्यादा होगी 2028 में, ठीक है, जो उसका पूरा का पूरा आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 2030 तक, राइट। सो दिस विल बी द टाइम लाइन ऑफ दिस, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया क्या है, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन दैट इज मेड विद फॉसिल फ्यूल्स, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर विंड्स, ठीक है, हमारी हाइड्रो पावर्स हो गई, और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर्स आते हैं, राइट, दीज आर बेसिकली स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन में, क्योंकि ये बेसिकली यूज करता है जीरो कार्बन सोर्सेज। ग्रीन अमोनिया की बात करें, दिस इज अ कैरियर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, तो दिस इज बेसिकली इंक्लूडेशन ऑफ अमोनिया, राइट, एंड इट कैन बी शिप्ड मोर इजिली देन हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस।
अब इंटरनेशनली क्या रिलेशंस होंगे, व्हाई दिस इज मैटरिंग टू अस इंटरनेशनली, क्योंकि काकीनाडा जो है बेसिकली इस पोजीशन में नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस बट हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में दिस प्लांट ऑलरेडी हैज व्हाट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है इस प्लांट के साथ में, कंपनीज जैसे कि हमारे पास जर्मनी की कंपनी हो गई, जापान की हो गई, सिंगापुर की हो गई एक्सपोर्ट के लिए। तो इसीलिए ग्रीन अमोनिया फ्रॉम द लाइक फैसिलिटी कैन बी यूज्ड फॉर एज क्लीन फ्यूल इन शिपिंग, राइट। और उसके बाद पावर के लिए भी यूज हो सकता है फॉर पावर जनरेशन आल्सो, राइट। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन है। I hope the question is visible to everyone. I cannot see a single answer over here. क्यों? Why were you late? Why? I cannot see answer. Yes, chat box, no answer. Yes, the correct answer we have is B. चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Okay, another very important news. ठीक है। So PM accuses TMC of endangering national security, calls for ending Maha Jungle Raj in Bengal. तो imagine करो that you are in a big classroom जहाँ पे like पूरी दुनिया के मतलब पूरे इंडिया के अलग अलग लोग हैं, राइट। एंड वन डे इन दैट क्लासरूम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉक्स अप, राइट। ही वॉक्स अप टू द पोडियम एंड ही टॉक्स अबाउट समथिंग सीरियस हैपनिंग इन लाइक वन ऑफ द स्टेट, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, राइट। वायलेंस इज हैपनिंग, लाइक ऑल दीस केओस इज बेसिकली इज हैपनिंग देयर। ही डजंट टॉक अबाउट क्रिकेट या फिर फेस्टिवल के बारे में बात नहीं करते हैं। ही टॉक्स अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि इन वेस्ट बंगाल सर्टेन थिंग्स आर बेसिकली गोइंग ऑन दैट एंड दे आर नॉट प्रॉब्लम फॉर द स्टेट, बल्कि वो दे आर दोज थिंग्स आर बेसिकली एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी, राइट। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट स्पेशली कमिंग फ्रॉम लीडर ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर कोई स्टेट, अगर कोई बेसिकली लीडर ऐसी चीज मेंशन करता है तो इट मींस दिस इज हैपनिंग इन अ लार्ज नंबर, राइट। और ज्यादा क्योटिक हो रही है वो चीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग देयर, ठीक है। हाउ यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। As I said before also, UPSC doesn't want to know the story, ठीक है। कौन opposition किसके साथ लड़ रहा है, ड्रामा क्रिएट हो रहा है नहीं, right? They do not care about that. They just want to know about the system, right? Their relations with people and the keywords that how you'll put it in the exam, right? This is the only thing that UPSC wants to know, right? Now, what happened? The prime minister accused the ruling party in West Bengal, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? Basically this TMC, right, of allowing a situation जहाँ पर basically law and orders are not strong, right, and basically criminals are free there, right, they are doing whatever they want to do, ठीक है। Political violence बहुत ज़्यादा हो रहा है, threats हो रहा है citizens को, ठीक है, और वो large number पे हो रहा है। This makes the state very unsafe and not just for residential बल्कि as a country for full, ठीक है। एक स्टेट में कुछ chaos होता है तो दूसरी स्टेट पे भी अफेक्ट पड़ता है, राइट। और वहां पे बेसिकली क्वेश्चंस उठाए जाते हैं फॉर द नेशनल सिक्योरिटी आल्सो, राइट। नाउ अब इसका मतलब क्या है, जो वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, व्हाट दीज वर्ड्स मीन। अगर इनकी बात करें तो व्हाट हैपेंड, द प्राइम मिनिस्टर बेसिकली अक्यूज्ड द रूलिंग पार्टी इन वेस्ट बंगाल, क्या बोला उन्होंने कि द टीएमसी ऑफ अलाउइंग अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज्यादा लॉज एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वायलेंस बहुत लार्ज नंबर में आ रहा है, प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो देयर इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड, जंगल राज, ठीक है। अब ये जंगल राज का मतलब क्या है और ये यूपीएससी में क्यों मैटर करता है? सो दिस इज अ टर्म दैट मींस रूल ऑफ जंगल, है ना। तो जहाँ पे लॉज नहीं होते हैं, ठीक है, लॉलेसनेस इज देयर, डिसऑर्डर्स जो है वो पूरा स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद दीज आर बेसिकली देयर इज अ सिचुएशन जो और ज्यादा वायलेंट हो चुकी है, राइट। उसके बाद महाजंगल राज क्या है, राइट, दिस महाजंगल राज, सो दिस मीन्स बेसिकली
और ज्यादा, right, in large number it is happening, bigger uncontrollable situation, right? So the prime minister calls it end Maha Jungle Raj in Bengal, because he wants to say that the current situation must be fixed, okay, so that the law and order, like, it should be realized, right? It should be like basically emphasized, so the state becomes safe or zyada peaceful ho jaye, right? So this accusations came in the context of political rivalry that has been going with the central government और state government के बीच में जो चल रहा है, ठीक है? अब पहले बैकग्राउंड कहानी समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि मैंने बताया, दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेट पॉलिटिक्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस, ठीक है, एक स्टेट में हुआ, इट इज गोइंग टू अफेक्ट एज अ नेशन वाइज, ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज कवरिंग जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 और एसए में भी, ठीक है। नाउ इट इज गोइंग टू टेल अस दैट हाउ वन स्टेट बेसिकली emphasize the other and what is the relation, right, between central and state, right? अगर बीच में rivalry हो जाती है then how chaotic it becomes, right? So though these all things will be discussed, responsibility क्या है state की, rule of law क्या होता है, accountability क्या होता है, citizen की safety कैसे आती है, ठीक है, ethical governance क्या होती है, right? All these things will be discussed and we'll try to understand keywords के साथ में and how we can write it, ठीक है। So there will be two keywords that I'll be telling you of the thinkers, ठीक है। पहला हमारे पास है banality of evil, so when we talk about this banality of evil, this is given to us by Hannah Arendt, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जब इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है, राइट, इज बेसिकली रॉन्ग डूइंग, जहाँ पे बेसिकली नॉर्मल हो जाती है, रूटीन में आ जाती है एंड इट इज अनचैलेंज्ड, राइट। तो यूपीएससी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू कैन राइट इट, दैट हैना एरेंट आइडियाज ऑफ द बेनिफिट ऑफ इविल एक्सप्लेन्स कि कैसे अगर लंबे टाइम तक लॉलेसनेस चल रही है, ठीक है, और वो बेसिकली वायलेंस जो है नॉर्मलाइज हो जाता है, राइट, सो दिस बिकम्स बेसिकली नेशन वाइज इशू, एक अगर स्टेट में भी हो रहा है तो दिस बिकम्स chaotic, right, and this becomes a bigger issue, right? So first keyword we have, another keyword we have is state of exceptions. ओके, सो दिस इज गिवन टू अस बाय कार्ल श्मिट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, स्टेट ऑफ एक्सेप्शन इज अ सिचुएशन जहां पर हमारे पास नॉर्मल स्लो जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। रूल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। वायलेंस, फियर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर वो रिप्लेस हो जाती है हमारे लीगल ऑर्डर से, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वो फेल हो जाती है इन्फोर्स करने से वो सारे लॉज इक्वालिटी के, राइट। सो लॉज एग्जिस्ट बट इन नॉट इफेक्टिव मैनर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड, राइट, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, टू शो पीपल दैट देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वो इफेक्ट में नहीं आ रहे, देयर इज वायलेंस, सोसाइटी इज इन chaos, राइट, एंड बेसिकली सिटीजंस आर लाइक गोइंग थ्रू अ लॉट, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस बाय whom? ओके, अब बात करते हैं कि जंगल राज, ठीक है। सबसे पहले समझना होगा जंगल राज कोई लीगल टर्म नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, सिर्फ उसी से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है नो फियर ऑफ लॉ, ठीक है। सो क्रिमिनल्स बेसिकली एक्ट्स फ्रीली देयर, वीक पॉलिसी होती है, ऑर्डिनरी पीपल जो है तो उनको बेसिकली सफर करना पड़ता है, दे आर फेल्ट अनसेफ, ठीक है। सो बाय एडिंग द वर्ड महा, राइट, महा मतलब बिग, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, इट इज हैपनिंग इन लार्ज नंबर, सो द प्राइम मिनिस्टर वो सेइंग दैट द सिचुएशन इज वेरी सीरियस, नॉर्मल डिसऑर्डर नहीं है कि बेसिकली स्टेट ने मैनेज कर लिया और हो गया, राइट। बेसिकली सेंटर आल्सो हैव टू prevail in it, right? So simple भाषा में समझा जाए, he was basically claiming that the rule of law is breaking down here, right? अब law and order important क्यों है? Why law and order are important to us? Online students, why no one is writing in the chat box? क्यों है law and order हमारे लिए important? क्या सिर्फ स्टेट के लिए law and order important होंगे? सिटीजन्स के लिए भी? एग्जैक्टली, सो लॉ एंड ऑर्डर इज मेनली अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, स्टेट्स कंट्रोल पुलिस, वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी कंट्रोल होती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिकम्स अ नेशनल इशू आल्सो, राइट। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द इशू इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, ये बेसिकली इशू है नेशनल सिक्योरिटी का। क्यों है? क्योंकि वेस्ट बंगाल शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, राइट। तो फिर उसके बाद में सेंसिटिव है यहाँ पे, राइट, इट इज सेंसिटिव टू इलीगल माइग्रेशन आल्सो, इंपॉर्टेंट क्यों है? बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इफ अ बॉर्डर स्टेट, ठीक है, अगर उनकी पॉलिसी वीक होगी, है ना, वायलेंस होगा, गवर्नेंस इतनी ज्यादा पुअर होगी, सो अफेक्ट क्या करेगा? अफेक्ट करेगा इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, अफेक्ट करेगा हमारा स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो सेंटर स्टेट बेसिकली शुड पे अटेंशन टू इट, राइट। सो अगर ये प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट, सो दिस इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक, राइट, दिस शुड बी कंसर्न आल्सो, ठीक है। अब
दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो इस न्यूज में हमारे पास आता है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सेंटर और स्टेट का इशू, ठीक है। सो दिस इशू ऑल्सो शोज कि फेडरलिज्म कैसे काम करता है इंडिया में। स्टेट के पास पावर है, ठीक है, पुलिस के लिए, बट द सेंटर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेंटर की, नेशनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर प्रोटेक्शन है, राइट। सो ओवर इंटरनल स्टेबिलिटी, सो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट अ स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर, इट क्रिएट्स व्हाट, ये डिबेट क्रिएट करता है, इट रेजेस क्वेश्चंस, लिमिट्स ऑफ सेंटर्स रोल, ठीक है, कब कब इंटरवेन कर सकती है स्टेट, कितनी सुनती है, राइट, और कितना बेसिकली ये बेसिकली टेस्ट करता है ऑफ लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। तो यूपीएससी जो है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है पॉलिटी में, जीएस 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग इट विद द थिंकर्स एंड द कीवर्ड्स दैट आई हैव मेंशनड हियर, राइट। अब पॉलिटी की जब लैंग्वेज की, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट एक्चुअली सेज, तो अलग दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, दैट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्लेज, दैट लीडर्स यूज सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, जंगल राज, महाजंगल राज, क्यों, क्योंकि दिस बेसिकली सेंड्स मैसेज टू द पब्लिक, राइट, ये हाईलाइट करता है सीरियसनेस को, राइट, ये मोबिलाइज ओपिनियन है, राइट। यूपीएससी स्टूडेंट शुड लाइक अंडरस्टैंड दिस, दैट सच लैंग्वेज इज नॉट न्यूट्रल, ठीक है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को, इन्फ्लुएंस करता है गवर्नेंस डिबेट्स को, राइट। यही चीजें आगे जाके डिस्कस होगी पार्लियामेंट में, यही चीजें बेसिकली टेल्स अस दैट हाउ बेसिकली आवर कंट्री इज हैपनिंग, राइट, हाउ इट इज वर्किंग, द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, राइट। अब पॉलिटिकल फाइट जो है ये सिर्फ वही है कि पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, नहीं, this is basically more than that, right? So according to the prime minister, this is not about people's safety, right, about a women's security, this is more than that, this is about like people's like confidence in the state also, और स्टेट के साथ साथ में बेसिकली हाउ पीपल आर रिफ्लेक्टिंग विद द सेंटर आल्सो, उनके रिलेशंस कैसे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट देयर आर पॉलिटिकल एलिगेशंस, सो फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स बोथ ऑफ द साइड मैटर्स टू यू, राइट, इसीलिए दीज कंसेप्ट्स मैटर मोर देन ओपिनियन। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, राइट, वो उनका बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग दैट ही हैव सेड, this is basically reflecting the situation, right, and in that way only we have to understand being a UPSC student, ठीक है। आई होप आपको न्यूज समझ में आ चुकी होंगी, ओके। Now, with this, let's move to another question. As usual, you'll get 4 to 5 seconds and you have to write the answer. And the answer should be in the chat box. I cannot see answers here today. Why? सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है सबने। Why? Hmm. Yes, chat portal students. Why I cannot see answers in chat box? क्या हुआ है आज? Are you sure it's B? Think again. Which of the following subjects are primarily the responsibility of state governments under the Indian Constitution? Police, अभी पता है, public order, national security, criminal law. What is the answer? स्टेट का नेशनल सिक्योरिटी है या सेंटर का नेशनल सिक्योरिटी? Then how is this correct? The second option. How the second option is correct? I cannot see answers in the chat box. Huh? National security is third, and you are saying which option? B, 1, 2, 4. Okay, criminal law. Vikas says D. Why? Primarily the responsibility. Read the question properly. Primarily, the word is mentioned over here. Okay, why A and why not B anymore? D. Because why D? How criminal law? जो क्रिमिनल लॉ है दैट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो दोनों ही दोनों बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो देयर इज अ वर्ड ओवर है प्राइमरली, ठीक है। पहले भी बोला है मैंने, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट नॉट ओनली, right, the word primarily, right, all these things should be understood, right। So as the word basically mentions here, so the D option is not correct, ठीक है। So we have answer correct here 1। दिव्यम बच्चा वाई बी, क्रिमिनल लॉ का नहीं होगा, समझ में आया आंसर? चले चलो
water all the time, Chennai moves to fixed piped supply. Okay. अब close your eyes for a moment, है ना, and imagine living in a big city जहाँ पे water doesn't come every day, ठीक है, ना पाइप से आता है, ठीक है, बल्कि instead you might have to wait maybe for like alternate days, maybe once in few days, like for water to come through the taps, right? So this was the basically, you know, reality for many people in Chennai, right? So the capital of Tamil Nadu. So many parts of the city used to get water supply only to specific times, ठीक है, 24/7 यहाँ पर पानी नहीं आता है, बल्कि कभी कभी पानी आता है, ठीक है, और बहुत बहुत दिनों में पानी आता है, राइट? सो दे हैड टू रिलाई ऑन बेसिकली दीज जेरी कैंस, टैंकर डिलीवरीज पे रिलाई करना पड़ता था, राइट? और बेसिकली वाटर स्टोर करना पड़ता था, राइट? सो दिस वाज द बेसिकली सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग इन चेन्नई. But now the city is trying to change the old habit, right? So Chennai is basically moving towards something most, you know, people take for granted, that is continuous water supply, piped water supply, right? So this means water all the time will be there whenever you open the tap, ठीक है. अब we'll try to understand exactly. Okay, Vikas, so we'll try to understand कि exactly हो क्या रहा है, right? So the city authorities of Chennai, they together with the state government bodies in Tamil Nadu have decided to repair the pipelines. पुरानी pipelines को रिपेयर करने का उन्होंने सोच लिया, right? रिड्यूस करेंगे वेस्टेज को, ठीक है, फिक्स करेंगे सारे लीक्स को, ताकि जो वाटर है उसका फ्लो है वो स्मूथली आ सके बिना किसी इंटरप्शन के, राइट? सो अभी क्यों कर रहे हैं वो चीज? क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना, बिना इसके तो काम चलेगा ही नहीं. तो इसीलिए, और क्योंकि चेन्नई की जो पॉपुलेशन है वो डिमांड करते हैं टू हैव वाटर, राइट, वाटर इंक्रीज करनी, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की, राइट? सो बिकॉज इन रिसेंट ईयर द सिटी बेसिकली एक्सपीरियंस सिवियर वाटर चैलेंजेस, राइट, एंड बिकॉज पीपल ऑल्सो लाइक एक्सपेक्ट रिलाइज बेसिक सर्विसेज ऑल्सो. तो कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होगा, इसका मतलब ना तो ज्यादा स्टोरेज करना पड़ेगा पानी का, ठीक है, ना ही उन्हें बेसिकली टैंक्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और कम बर्डन होगा बेसिकली ऑन हाउस होल्ड्स टू फेच वाटर, राइट? और इम्प्रूव क्या होगा? सैनिटेशन इम्प्रूव होगा, पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, बेटर बेसिकली कन्वीनियंस होगा लोगों के लिए. So these fixing networks, these fixing pipe networks basically helps what? Reduce water loss from the leaks also, और basically help करेगा और ज़्यादा effective होगा ना on the availability of the water, ठीक है? अब ये सारी तो कहानी है, we'll try to understand the back story of it and linking it with the paper as well, right? Now, पहले बात करेंगे कि हम इस न्यूज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, किस किस पेपर के साथ ये कनेक्ट करता है. सो दिस इज बेसिकली कनेक्टेड टू जीएस पेपर 2. गवर्नेंस की बात करेंगे, अर्बन लोकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करेंगे, ठीक है, कि बेसिकली क्या क्या एफिशिएंसी होती है, क्या क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट, राइट? हाउ बेसिकली दे मैनेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. अर्बन अर्बन सर्विसेज को कैसे गवर्नमेंट फिक्स करती है. जीएस पेपर 2 में वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट्स हैं, राइट, urban basic services है, sustainable management है, right? These sustainable cities, how they basically get, you know, efficient, और basically manage कैसे करती है government, right? Then we talk about SA, water security, urban infrastructure, all these are topics of this, and on these things you can write it down, ठीक है. अब as usual समझने की कोशिश करेंगे बैकग्राउंड स्टोरी के साथ में. Okay, so what is happening? So city of Chennai is now taking steps to provide continuous piped water supply. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि पानी हमेशा रहेगा, not only for few hours, या फिर कि कुछ ही दिनों में पाइप आ रहा है, right? पानी आ रहा है. So this like maybe sounding very normal to you, चलो ठीक है पानी मिल गया, ठीक है, but in reality बहुत ज़्यादा Indian cities में, ठीक है, including Chennai, 24-hour water supply has never been common, right? They faced lots of issues, ठीक है. अब we'll try to understand UPSC इसका लेना देना क्यों है, right? What you can write in the examples also. तो पहले क्या प्रॉब्लम थी? बहुत टाइम तक क्या होता था, जो पानी था once या फिर twice it used to come, ठीक है. अब sometimes अब कभी-कभी ऐसे भी होता था कि सिर्फ 30 मिनट के लिए आ रहा है, या फिर सिर्फ 2 घंटे के लिए आ रहा है ना? जैसे हम पानी खोलते हैं हमारे पास रहता है, तो उन्हें बेसिकली स्टोर करके रखनी पड़ती थी वो चीजें, राइट? सो इट वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी. सो फाइनली पीपल हैड टू वेक अप, राइट? दे हैव टू स्टोर वाटर इन बकेट्स एंड टैंक्स, डिपेंड्स ऑन प्राइवेट टैंकर्स, राइट? तो जो इसमें सबसे ज़्यादा सफर कर रही थी, दैट वाज हैपनिंग टू द पुअर फैमिलीज, राइट? दे सफर्ड द मोस्ट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैंकर वाटर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है. सो दीज रिच एरियाज कुड अफोर्ड एक्स्ट्रा स्टोरेज, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सो स्लम्स एंड रेंटेड हाउस फेस्ड शॉर्टेजेस बिकॉज ऑफ दिस, राइट? सो वाटर एक्सेस वाज अनइक्वल इवन व्हेन द सेम सिटी वाज देयर, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आती है? अनइक्वालिटी के बारे में पता चलता है. The gap between poor and rich, the gap between rural and urban is also seen, ठीक है. तो ये तो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, राइट?
ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि सिटी अथॉरिटीज आर नॉट जस्ट एडिंग मोर वाटर, बल्कि वो क्या कर रही है, फिक्स भी कर रही है सिस्टम को। ठीक है, क्या क्या करेंगे वो, पहले तो करेंगी रिपेयर, रिपेयरिंग ओल्ड पाइप्स विल बी डन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये चीज करेंगे। ठीक है, तो जितने भी पाइपलाइन्स है चेन्नई में वो बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है, रस्टेड हो चुकी है या फिर दे आर क्रैक्ड, राइट। सो लीकिंग अंडरग्राउंड बिकम बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो क्या हो रहा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट लाइक इट इज लाइक लॉस्ट बिफोर रीचिंग होम, राइट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि रिप्लेस करेंगे जितने भी डैमेज पाइप्स होंगे, ठीक है, जितने भी लीक पॉइंट्स होंगे उन्हें सील करेंगे, इंप्रूव करेंगे हमारा प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दिस सेम वाटर कैन लाइक रीच टू मेनी पीपल। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा रिड्यूसिंग वाटर लॉस, राइट। सो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जब हमारे पास व्हेन वाटर बेसिकली लीक्स इट वेस्ट अ प्रीशियस रिसोर्सेज, इट इंक्रीजेस कॉस्ट, राइट। ठीक है, लोअर सप्लाई प्रेशर होता है यहाँ पे, एंड दिस विल बेसिकली हेल्प्स फिक्सिंग लीक्स आल्सो। सो दिस वाटर कंजर्वेशन विल बी देयर, सस्टेनेबल अर्बन मैनेजमेंट विल आल्सो बी देयर, एफिशिएंट यूज विल होगा हमारा जो पैसों का होगा, राइट। सो इसीलिए बहुत ज्यादा इशू है वाटर स्कार्स सिटीज के लिए, स्पेशली सिटीज लाइक चेन्नई, राइट। अब चेन्नई को इस चीज की जरूरत अब क्यों पड़ी है, पहले ये चीज क्यों नहीं हुई थी। तो अब क्या है, चेन्नई के पास में दिस बेसिकली डिमांड हैज लाइक इंक्रीज्ड, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अर्बनाइजेशन जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट्स हो रही है, इंडस्ट्रीज हो रही है, राइट, दे बेसिकली एग्जिस्ट। सो दिस क्लाइमेट चेंज कॉजेज इनरेगुलर रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, पहले को जो सिस्टम था, ठीक है, दैट वाज डिजाइन फॉर अ स्मॉलर पॉपुलेशन, राइट, एंड दिस इज नॉट द सिस्टम दैट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। ठीक है, इसीलिए चेंज की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक सूटेबल फॉर द सिटीज, फॉर द बेसिकली अर्बन cities anymore, right? So this is why the city most upgrade governance and basically they are looking for the upgrade infrastructure, right? अब public health के बारे में बात करते हैं, तो जिस continuous piped water supply will be there, improve क्या करेगा, hygiene improve करेगा, sanitation improve करेगा, reduce करेगा हमारा waterborne diseases also। तो जब हमारे पास पानी जो है बेसिकली कम आवर्स के लिए रहता था, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी, दो दीज पुअर पीपल, राइट। सो दीज पाइप स्टक इन ड्रिंक वाटर व्हेन दे बेसिकली वर एम्प्टी, कंटेमिनेशन जो था वो इंक्रीज हो गया था, 24/7 जो था they basically used to face problem, right? तो पाइप्स फुल रहते थे, प्रेशर जो था वो स्टेडी, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी मेजर्ड ओवर हियर। ठीक है, अब इसके साथ साथ में व्हाट विल बी द सोशल बेनिफिशियल्स हियर, तो जब हम इसकी बात करते हैं, दिस लाइक मूव विल बेसिकली हेल्प करेगा किस चीज में, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट एंकर्स में। ठीक है, सबसे ज्यादा हेल्प किसको होगी, दोस पुअर पीपल, राइट। रिड्यूस क्या करेगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस करेगा कि सबके पास एक्सेस रहेगा पानी का। दूसरा, वाटर सप्लाई विल बी मोर फेयर, राइट, इंप्रूव करेगा हमारा म्यूनिसिपल गवर्नेंस, राइट। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज दे आर लाइक फोकसिंग ऑन सर्विस डिलीवरी आल्सो, है ना। गवर्नेंस इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट टू फाइनली सिस्टम रिफॉर्म की तरफ जा रही है। ठीक है, दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स सिस्टम रिफॉर्म। ठीक है, तो आई होप चेन्नई की कहानी समझ में आ गई होगी, राइट। So what did we understand कि चेन्नई द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज मूविंग टुवर्ड्स 24/7 पाइप्स से वाटर सप्लाई। ठीक है, पहले की सिचुएशन क्या थी कि जो हमारा वाटर सप्लाई था, राइट, दैट वाज इंटरमीडिएट, मतलब दिन में या तो फिर कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे आता था या दिन में एक दो बार ही आता था, राइट, एंड फॉर सम टाइम ओनली। फिर उसके बाद पीपल वर डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टैंक्स। ठीक है, इसकी वजह से देयर वाज अ गैप बिटवीन सीन, और इसमें सफर कर रहे थे दीज पुअर पीपल, राइट। अब फाइनली देयर आर लाइक सम मेजर दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस पाइप सप्लाई रहेगी, इसका मतलब क्या है कि पानी बेसिकली पूरा टाइम रहेगा इन द टैप्स, एंड देयर विल बी नो लॉन्ग फॉर स्टोरेज एज वेल। ठीक है, कन्वीनियंस रहेगा, डिग्निटी विल बी मेंटेन, राइट। रिपेयरिंग की बेसिकली क्या क्या मेजर्स लेंगे, पहले रिपेयर करेंगे पुराने और लीक जितने भी पाइपलाइंस होंगे, उसके बाद रिप्लेस करेंगे डैमेज पाइप्स के साथ में, राइट, और रिड्यूस करेंगे वाटर वेस्टेज और प्रेशर लॉस में। ठीक है, सो ऑल दीज मेजर्स विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ पब्लिक हेल्थ और सोशल बेनिफिट्स होंगे, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सैनिटेशन इंप्रूव हो जाएगी, हाइजीन विल बी देयर, है ना। फिर उसके बाद में रिड्यूस करेगा वाटर बोर्न डिजीजेस को भी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ बेसिकली मेंटेन रहेगी, पाइप्स फुल रहेंगे तो मतलब कंटामिनेशन कम होगा, राइट। रिड्यूस क्या करेगा, डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट एंगल्स आल्सो, तो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर दिस आल्सो कैन बी मिनिमाइज्ड, राइट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, और उस तरीके का सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो उस तरीके का सिस्टम लोग बना रहे हैं, राइट। इंक्रीज क्या कर रहा है, वाटर डिमांड इंक्रीज कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इरेगुलर रेनफॉल हो रही थी इस चीज की वजह से, इसीलिए सिस्टम में चेंजेस लेकर आने की जरूरत हमें पड़ गई, राइट। ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली डिस्कस्ड है। This is a question that you have. So this is the homework. So make sure that you are writing your answer in the comment section, right?
And for the access of PDF, you can have it in the comment section. Okay. So this is it for today, and I'll see you tomorrow at the same time. Thank you.